Okay students, so we were doing the topic cell organelles. Cell organelles के अंदर हमने कौन कौन सी cell organelles कर ली थी? They were, we had already deal with Golgi complex, we had already done Golgi complex, we had already done the ER, we had done with the introduction to the ribosomes, then we had already completed the topic lysosomes. Now we are going to do the rest of the topics that are pending. They are mitochondria, plastids and vacuoles. Mitochondria. First of all, let us deal with mitochondria. Mitochondria is also known as the powerhouse of the cell. Mitochondria is also known as the powerhouse of the cell. It is a double membrane cellular organelle. It is double membraned cellular organelle. The outer membrane is porous, inner membrane is highly folded. Highly folded. Outer membrane is porous and inner membrane is highly folded. Porous क्यों है? कभी भी अगर किसी भी membrane के अंदर pores हैं तो basically they are because of for the exchange of materials from the organelle to the cytoplasm. इसकी diagram draw करते हैं. Outer membrane is porous. Inner membrane is having several folds. Inner membrane is highly folded. Why the inner membrane is highly folded? To increase the surface area for cellular respiration. ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है. मैट्रिक्स ऑल्सो प्रोवाइड्स द स्पेस फर्दर फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन. जो सेलुलर रेस्पिरेशन है दैट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. सेलुलर रेस्पिरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स साइकिल. जो क्रेब्स साइकिल है वो हमें मेन एनर्जी प्रोवाइड करता है and that takes place inside the mitochondrial matrix. Respiration is the thing that is exceptionally present in all the living organisms. हर living organisms respire तो करता ही है, हर हाल में respiration जो है एक living organism करता ही है. So the function of mitochondria is performed by mesosomes in prokaryotes. The function of mitochondria is performed by mesosomes in prokaryotes. Mesosomes क्या होते हैं? Mesosome, this is a prokaryotic cell. तो ये mesosome क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होते हैं जो फर्दर सेलुलर रेस्पिरेशन को इंक्रीज को स्पेस प्रोवाइड करने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं. ठीक है, दिस इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल as the energy is generated in the form of ATP inside the mitochondria.
Let us write this point. हाईली फोल्डेड का रीजन पता चल गया, टू प्रोवाइड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन. To increase the surface area for respiration, the cellular membrane is highly folded. So next thing is mitochondria produces energy. Okay, this marker is not working. Mitochondria produces energy in the form of ATP. ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. या this is the definition of ATP. Adenosine triphosphate is the definition for full form for the ATP. What is ATP? ATP is the energy currency. ATP is the energy currency. What is this energy currency? Energy currency क्या होता है कि जैसे मैंने कुछ खरीदना है, ठीक है, I have to buy a biscuit packet for 25 rupees. 25 rupees एक बिस्किट पैकेट को खरीदने के लिए यूज हो रहे हैं. वैसे ही अगर मैं ब्लिंक कर रही हूँ अपनी आई को तो अलग नंबर ऑफ ATPs यूज हो रहे हैं. अगर मुझे डाइजेशन करनी है तो अलग नंबर ऑफ ATPs यूज हो रहे हैं. अगर मुझे एक्सक्रीशन करनी है तो डिफरेंट नंबर ऑफ ATPs जरूरी होते हैं. सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आर वेरी एनर्जी कॉस्टली. एनर्जी कॉस्टली मतलब हाई एनर्जी इनटेक करते हैं, जो जिनको हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. एंड सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आर नॉट सो हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो दिस इज एनर्जी करेंसी. ATP इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी. तो ये जो है क्रेब्स साइकिल, या फिर अगर बात करें हम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल produces 36 ATPs on complete respiration. कंप्लीट रेस्पिरेशन करने के बाद एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 36 ATPs रिलीज करता है. Up to the next thing we have the plastids. Plastids are the kitchen of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट थिंग इज प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स. द ल्यूकोप्लास्ट. P for plastid, P for only present in plants. ठीक है, P for plastids, P for only present in plants. चैप्टर के लास्ट में आज इस वीडियो के लास्ट में हम प्लांट एंड एनिमल सेल के अंदर जो डिफरेंस होता है वो भी डील करने वाले हैं. सो उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में. द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट. द सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट. एंड द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. प्लास्टिड्स हैव फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज द थैलाकॉइड्स. ठीक है, प्लास्टिड्स क्या हैं? एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बता रही हूं बेसिकली. ये जो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये होते हैं थैलाकॉइड्स. थैलाकॉइड्स आर पाइल्ड अप इनटू वेरियस स्टैक्स. ये स्टैक को क्या बोला जाता है? ग्रैनम. एंड
many of these stacks are present in a plastid, or we can say chloroplast or chromoplast. These, the plural of these granums are known as grana. Grana is the plural form. एक और चीज है जो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट्स ऑफ डीएनए ऑफ इट्स ओन. क्लोरोप्लास्ट भी है जो इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए of its own. This DNA is simply lying in the matrix. क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना मैट्रिक्स होता है. And the chloroplast is known as the kitchen of the cell. Chloroplast is known as the kitchen of the cell. Why? Because it performs photosynthesis और फोटोसिंथेसिस करने के बाद इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर्स फूड. इसी वजह से इसको बोला जाता है किचन ऑफ द सेल. तो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, क्लोरो का मतलब है क्लोरोफिल, बेसिकली द ग्रीन कलर्ड, एंड green colored plastids are known as chloroplasts which are present in leaves या green parts of the plants में present है, जो basically photosynthesis करते हैं. Chloroplasts perform a major function in photosynthesis. That's why the chloroplast is known as the kitchen of the cell. Chloroplasts are the green colored plastids. It forms the kitchen of the cell because it performs photosynthesis and it prepares the food. ठीक है, जो एक पार्ट ऑफ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो इसका नाम क्या होता है? थैलाकॉइड. एंड द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा, एंड दिस इज द डीएनए. डीएनए इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज द क्लोरोप्लास्ट, दोनों में. ओके, तो लेट अस कम टू द ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट आर बेसिकली द कलरलेस और द व्हाइट कलर्ड plastids. हमारे ब्लड के अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. द फर्स्ट काइंड ऑफ सेल इज द रेड ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है. सेकेंड काइंड ऑफ सेल्स आर व्हाइट ब्लड सेल्स. व्हाइट ब्लड सेल्स को बायोलॉजी में ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. ल्यूकोसाइट्स, लेट मी राइट अप हियर. ल्यूको, ल्यूको का मतलब है व्हाइट, साइट्स का मतलब है सेल्स, एंड दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द व्हाइट ब्लड सेल्स. ठीक है, दीज आर द व्हाइट सेल्स. अब यही अगर मैं साइट की जगह पे प्लास्ट लिख दूं तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? प्लास्टिड. ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट इज बेसिकली प्लास्टिड विच इज व्हाइट इन कलर और इज वी कैन से कलरलेस. कलरलेस है ये. दिस इज द व्हाइट कलर्ड प्लास्टिक. ठीक है, क्रोमो. क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या है? क्रोमो का मतलब है कलर्ड, प्लास्टिड का मतलब, प्लास्ट का मतलब प्लास्टिड. सो क्रोमोप्लास्ट आर द कलर्ड plastids. These are the colored plastids. प्लांट्स के अंदर तीनों टाइप के प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं. सभी का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस जिसमें जिस कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है उस कलर का वो प्लास्टिड माना जाता है. ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज टू स्टोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द सेल. स्टोर डिफरेंट products. These products may be amino acid, proteins and various organic acids. ठीक है, इस टाइप के जो हैं प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं इनसाइड द
प्लास्टिड्स. बेसिकली प्लास्टिड इज यूज्ड फॉर स्टोरेज, क्योंकि आप समझो एक प्लांट है, सिर्फ एक प्लांट ही है जो ऑटोट्रॉफिक है और हमें फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है. बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स अगर ऑटोट्रॉफिक हैं भी तो हमें फूड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं. सो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके जो भी फूड मटेरियल बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट इस तरीके से अडेप्टेड होते हैं कि वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकें. दैट्स व्हाई these are known as they are having a lot of storage organs, and one of the storage organ is the leucoplast. Chromoplast. Chromoplast provides color to the cell. Present in the colored part of the plant. Colored part of the plant. And this colored part may be leaf, maybe petal, maybe bract in some cases, maybe stem or any other part. ठीक है. बेसिकली फ्लावर्स में ये कलर्ड प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, बट दीज अगर वाइट कलर्ड फ्लावर्स में आप पूछोगे तो ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. नो, ल्यूकोप्लास्ट आर बेसिकली ट्रांसपेरेंट. ठीक है. व्हाइट ब्लड सेल्स देखें कभी ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस होता है, बिल्कुल ब्राइट व्हाइट नहीं होता. ब्राइट व्हाइट कलर ऑफ द फ्लावर इज ड्यू टू द chromoplast present in the colored part of the plant, give attractive appearance to the plant. Appearance to the plant. Chloroplast. Chloroplasts are present in the leaves. Present in the leaves. Or we can say the photosynthetic part of the cell. Sometimes the stem is also photosynthetic, sometimes the leaves are photosynthetic, sometimes the other part of the plant is also photosynthetic. तो जिस भी photosynthetic part में क्या होती है, chloroplast present होता है. In the photosynthetic part, chlorophyll is present. And chloroplasts are the site for light reaction. जो लाइट रिएक्शन है बेसिकली वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है. This was all about the plastids. Now let me tell you a very interesting story ऑफ जो मानी जाती है क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट द थिंग दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर द ओनली सेल ऑर्गेनेलीज दे आर हैविंग द डीएनए ऑफ देयर ओन. डीएनए ऑफ देयर ओन में किस सेल ऑर्गेनेली में खुद का डीएनए होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमन है. अगर मैंने यहाँ पे लेबल ही कर दिया डीएनए को, इफ आई हैव लेबल्ड द डीएनए, ठीक है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, तो इसको आपने ध्यान से देखना है. इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द मैट्रिक्स, इसको आपने ध्यान से देखना है. डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो डीएनए की हेल्प से ये क्या कर सकते हैं, अपना मटेरियल, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ अलग से एंजाइम्स हैं, वो खुद से सिक्रीट कर सकते हैं. अब एक और चीज आपको बताती हूँ दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड वो चीज है कि क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स, बेसिकली प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया को पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल माना जाता था, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल के भी तो यही फीचर्स होते हैं. इट इज हैविंग अ सिंगल मेम्ब्रेन. सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर उसके पास क्या होता है, उसके पास खुद का डीएनए होता है, उसके पास कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेली नहीं होती है, बट उसके पास अपना साइटोप्लाज्म होता है. मीन्स ये एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. दिस इज टेलिंग दैट कि बहुत साल पहले इवोल्यूशन के टाइम पे जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट थे वो क्या थे, इंडिपेंडेंट ऑकरिंग ऑर्गेनेलीज थी. इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेलीज होने के बावजूद इन्होंने क्या किया, बाद में इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया टू द यूकैरियोटिक सेल. अब जिस सेल के साथ जिस
पार्ट ऑफ द लाइक प्लास्टिड्स का हुआ है एसोसिएशन विद द प्लांट सेल, एंड माइटोकॉन्ड्रिया का बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के साथ एसोसिएशन हुआ है। इस टाइप के एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन जिसमें दोनों मेंबर्स हैं एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये जो प्लास्टिड्स एंड यूकैरियोटिक सेल का जो एसोसिएशन है दैट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, कि पहले ये फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेलिस थी, बट बाद में ये यूकैरियोटिक सेल के साथ एसोसिएट हो गई। इस तरीके से एसोसिएट हुई कि अब ये क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के बाहर निकाल दें फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड सेल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सेम इज इन द केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर प्लांट सेल से क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाल दे तो प्लांट क्या कर पाएगा, प्लांट अपना खाना नहीं ले पाएगा, ऑटोट्रोफिज्म नहीं कर पाएगा एंड प्लांट सेल विल डाई। ऑन द अदर हैंड क्लोरोप्लास्ट विल ऑल्सो डाई। So that was the story of mitochondria and chloroplast regarding the DNA. Okay. So अब हम बात करते हैं vacuoles की. Vacuoles can be used for three functions. They can be used for storage. They can be used for osmoregulation. And they can be used for digestion. ठीक है, वैक्यूल्स की बात करते हैं तो वैक्यूल्स में जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी लार्ज। इन प्लांट सेल देयर आर लार्ज बिगर साइज ऑफ वैक्यूल्स आर फाउंड in plant cell. Animal cell have a smaller or no vacuole, smaller or no vacuole according to its requirement. Okay, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स आर यूज्ड इन स्टोरेज। बिगर साइज ऑफ वैक्यूल्स आर फाउंड इन प्लांट सेल। समटाइम्स 50 to 90% ऑफ द स्टोरेज वॉल्यूम है, 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल। ठीक है, तो दिस इज वन केस। एंड इन द प्लांट सेल वैक्यूल्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज इन द प्लांट सेल्स। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है, अपने सेल के अंदर मेंटेनिंग द वाटर रेगुलेशन, मेंटेनिंग वाटर कंटेंट इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। जो टोनिसिटी है वो ऑस्मोरेगुलेट होती है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल्स क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं एंड समटाइम्स व्हेन द वाटर कंटेंट इज लेस तो वैक्यूल क्या कर देते हैं, अपने वाला पानी सेल को प्रोवाइड कर देते हैं। इन दिस वे ऑस्मोरेगुलरिटी को, ऑस्मोलैरिटी को ऑस्मोरेगुलेशन करने में वैक्यूल्स हेल्पफुल होते हैं इन द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। प्लांट सेल में बेसिकली ज्यादा स्पेस क्यों, ज्यादा बड़ा वैक्यूल क्यों होता है, टू प्रोवाइड टर्जिडिटी। टू प्रोवाइड द टर्जिडिटी in amoeba and paramecium, in certain unicellular organisms like amoeba and paramecium. Amoeba and paramecium. Example, amoeba and paramecium. In certain unicellular organisms like amoeba and paramecium, ये जो हमारा वैक्यूल होता है that
हेल्प्स इन डाइजेशन। पहले ये इंजेस्ट करके क्या कर लेता है, फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेता है। जब कोई भी फूड मटेरियल को इंजेस्ट करते हैं तो फूड वैक्यूल फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, लाइसोसोम्स वाले एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं एंड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एंड देन फाइनली एक्सक्रीटरी वैक्यूल के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल की बॉडी से बाहर निकल जाता है। इन दिस वे वैक्यूल्स आर हेल्पफुल इन डिफरेंट वेज। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद द टॉपिक ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज। नाउ हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज सेल डिविजन। Cell division is of two types. Basically, the cell division is of two types, that is mitosis and meiosis. The first type of cell division is mitosis and the next type of cell division is meiosis. देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द केस ऑफ सेल डिवीजन। हमारा जो सेल है हमने देख लिया, एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जो सेल है दैट इज फॉर्मिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर्म कर रहा है एंड बेसिक जो है बॉडी का पार्ट फॉर्म कर रहा है। सेल के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो सेल को डिवाइड होना पड़ेगा, जैसे कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, वैसे ही सेल डिवीजन इज द प्रोसेस दैट इज वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ सेल। तो इसलिए सेल डिवीजन होती है। सेल क्या करते हैं, खुद ही अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, बिकॉज हर एक सेल का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है एंड इट में वैरी। जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज के करीब होता है एंड रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज 120 डेज, एग्जैक्टली 120 डेज। एंड बाकी सेल्स का है जैसे ब्रेन सेल, लिवर सेल, स्टमक सेल्स, इट में वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। तो अगर इतना कम लाइफ स्पैन होता है, हमारी जिंदगी जो होती है, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज 60 ईयर्स। 60 साल कोई कैसे जी लेता है? बिकॉज ऑफ सेल डिविजन। इन ऑर्डर टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बॉडी, सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग एंड इसी चीज को क्या बोलते हैं, रिपेयर एंड रीजनरेशन। सेल डिविजन हेल्प्स इन रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ द बॉडी। जब सेल डिवीजन कम हो जाती है तो डेथ होनी शुरू हो जाती है, बहुत ऑर्गन्स ऑफ द पार्ट ऑर्गन फेलियर होना शुरू हो जाता है एंड अल्टीमेटली द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो माइटोसिस इज नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन। and meiosis is known as the reductional division. इक्वेशनल डिवीजन एंड रिडक्शनल डिवीजन का जो मतलब है वो आता है न्यूक्लियस से। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डिविजन्स होते हैं, बेसिकली माइटोसिस, मियोसिस एंड बाइनरी फिशन। दिस इज अमीबा। अमीबा क्या करता है? अमीबा बाइनरी फिशन करता है। ठीक है, ये क्या करता है अपनी, दिस इज अमीबा
अमीबा क्या करता है, अमीबा अपना न्यूक्लियस बड़ा कर लेता है एंड उसके बाद वो स्मॉल डॉटर अमीबा में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। और ये प्रोसीजर होता कैसे है, दिस इज द डॉटर अमीबा, ये क्या करते हैं, ये साइज में ग्रो करते हैं, दे ग्रो इन द साइज एंड देयर न्यूक्लियस ऑल्सो ग्रोज। पहले क्या करता है, इनका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, this is amoeba and these are the dividing nuclei, these are the dividing nuclei, this is the dividing nuclei। तो उसके बाद क्या होता है, एक अमीबा बन जाता है with 2 न्यूक्लियसेस, अमीबा 2 न्यूक्लियसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड देन वो साइटोकाइनेसिस करके 2 डॉटर अमीबाए फॉर्म कर लेता है। दिस इज अ सिंपल डिवीजन विच इज नोन एज द बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद को 2 सेल्स के अंदर डिवाइड कर लेता है। दिस इज वन थिंग एंड द अदर थिंग इज इक्वेशनल एंड रिडक्शनल का क्या मतलब है। माइटोसिस में 1 मदर सेल produces 2 daughter cells of same number of chromosomes, ठीक है। ये जो मदर सेल है that is diploid and ये जो डॉटर सेल्स बने हैं they are also diploid। इसका मतलब क्या हुआ, क्रोमोसोम्स पे जाना पड़ेगा, न्यूक्लियस पे जाना पड़ेगा। न्यूक्लियस के अंदर मैंने बोला था एक पार्ट होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स आर डीएनए, ठीक है। ये डीएनए क्या करता है, कंडेंस हो जाता है जब एक सेल ने डिवाइड करना होता है। दिस डीएनए कंडेंसेस and converts itself into chromosomes। ये डीएनए कंडेंस होके क्रोमोसोम्स में खुद को कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। नॉर्मली ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर 2 क्रोमोसोम्स एंड 1 पेयर। ह्यूमन बींग्स के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम नंबर वेरी करते हैं। डॉग में अलग होते हैं, पोटैटो में अलग, अनियन में अलग और ह्यूमन बींग में अलग, ठीक है। ये समझ आ गया। ये जो एक्स शेप्ड क्रोमोसोम्स होते हैं दीज आर द पेयर्ड क्रोमोसोम्स, ये पेयर्ड क्रोमोसोम्स है। एंड डिप्लॉयड सेल मतलब नॉर्मल सेल। Normal cell of human being is having 46 chromosomes or 23 pairs of chromosomes, ठीक है। डिप्लॉयड सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड हैप्लॉयड सेल क्या होता है ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग का रेफरेंस लेके आपको समझा रही हूँ क्योंकि आपने ह्यूमन बीइंग को ही पढ़ना है अभी, बाकी सारा कुछ आपको हायर लेवल पे आएगा। Haploid cell means sperm and egg. Sperm and egg are the haploid cells. These are having 23 chromosomes. ठीक है, these are having 23 chromosomes. This is the diploid cell and this is the haploid cell. अब 1 mother cell, जैसे सपोज करो रेफरेंस के लिए हम ले लेते हैं 4 क्रोमोसोम्स आर डिप्लॉयड सेल, 4 क्रोमोसोम्स आर फॉर्मिंग द डिप्लॉयड सेल। इस सेल ने माइटोसिस करनी है, तो ये माइटोसिस करने के बाद क्या करेगा, ये माइटोसिस करने के बाद 2 सेल्स
विद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही फॉर्म करेगा। ठीक है, these are the daughter cells and this is the mother cell which has gone mitosis. That's why this kind of division, cell division is known as the equational division, क्योंकि एक डिवीजन के बाद दो सेल फॉर्म होते हैं एंड दे आर इक्वल इन द क्रोमोसोम नंबर में इक्वल होते हैं। ठीक है, दीज सेल्स। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, दिस इज वन सेल, ये मदर सेल है, इसके पास इस डिप्लॉयड सेल, अब ये सेल क्या है, ये सेल भी डिप्लॉयड है, ये सेल भी डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड हैप्लॉयड वाली चीज को हम प्लॉइडी बोलते हैं। कई सेल्स होते हैं ट्रिप्लॉयड भी होते हैं, जैसे एंडोस्पर्म ऑफ द प्लांट सेल, वो ट्रिप्लॉयड होते हैं। तो दिस थिंग इज नोन एज प्लॉइडी ऑफ द सेल। अगर मैं पूछूं हमारे स्किन सेल्स की प्लॉइडी क्या है, तो यू विल से हैप्लॉयड, आवर स्किन, सॉरी डिप्लॉयड, आवर स्किन सेल्स आर डिप्लॉयड। अगर मैं पूछूं एक ह्यूमन ओवम की प्लॉइडी लेवल क्या है, तो आप बोलोगे हैप्लॉयड। ठीक है, प्लॉइडी मीन्स डिप्लॉयड या हैप्लॉयड या ट्रिप्लॉयड या टेट्राप्लॉयड। मोर ओवर इट कैन बी पॉलीप्लॉयड ऑल्सो, एंड पॉलीप्लॉइडी इज वेरी कॉमन इन प्लांट्स। तो मियोसिस की बात करते हैं। मियोसिस में वन मदर सेल इज फॉर्मिंग 4 daughter cells. One mother cells form 4 daughter cells and these are half in chromosome number, मतलब हैप्लॉइड। यहां पे पेयर्ड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। ये मदर सेल जो है दैट इज डिप्लॉयड एंड द डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड। ओके, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, क्योंकि रिप्रोडक्शन के टाइम स्पर्म एंड एग को मीट करना होता है। ठीक है, सपोज करो ये एक एग सेल है और फर्दर हमारे पास एक स्पर्म सेल आ रहा है, दिस इज द स्पर्म सेल, ये हमारा स्पर्म सेल है, एग सेल के अंदर वो फ्यूज करेगा, तो ये भी n है और ये भी n है, दोनों प्लस होके क्या बन जाएंगे, 2n बन जाएंगे। मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो नॉर्मल पैदा होगा। अगर सपोज करो ये 2n है, ये 2n है और इसमें एक स्पर्म जाके मिल जाएगा, तो क्या होगा, 3n टाइप का ह्यूमन बीइंग पैदा हो जाएगा एंड वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि ऐसा ह्यूमन बीइंग सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। क्योंकि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हमारे हेरिडेटरी मटेरियल होते हैं, हम उसमें इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने आपको बोला था कोडिंग की होती है, बताया होता है कि कैसे कैसे करके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे किस ह्यूमन बीइंग में। अगर वही चीज वही इंफॉर्मेशन में गड़बड़ होगी, वायरस आ गया, तो वो क्या हो जाएगी, सारी खराब हो जाएगी एंड द ह्यूमन बीइंग विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सो आपको पता चल गया रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा जाता है मियोसिस को, एंड इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है मियोसिस को। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। Thank you so much. And for the notes, you can again visit to the description box. आपको PDF मिल जाएगी and you can download the notes and read from that. Thank you students. Thanks for watching.